آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد حاضر۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ اسرو کے ذریعے چندریان سوم کے لینڈر ماڈیول کو آج خلائی جہاز کے پروپلشن ماڈیول سے کامیابی کے ساتھ کیا گیا الگ۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے تمام اضلاع، تحصیل، میونسپل حدود کے تحت آنے والے علاقوں، قصبہ جات، ریونیو ولیجز اور دوسرے انتظامی حدود کے یونٹوں کو 2021 کی مردم شماری مکمل ہونے تک منجمد کرنے کا کیا فیصلہ۔ WHO کی روایتی طریقہ علاج سے متعلق پہلی عالمی سربراہ کانفرنس ہوئی آج گجرات کے گاندھی نگر میں شروع۔ اور شمالی بھارت کے کئی ریاستوں میں سیلابی صورتحال سے عام زندگی درہم برہم۔ ہماچل پردیش میں اب تک 327 لوگوں کی ہوئی موت، سینکڑوں افراد ہوئے زخمی اور لاپتہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسرو نے چندریان 3 کے لینڈر ماڈیول کو آج خلائی جہاز کے پروپلشن ماڈیول سے کامیابی کے ساتھ الگ کر دیا۔ علیحدگی کے بعد لینڈر ماڈیول چاند کی سطح کا بقیہ سفر آزادانہ طور پر کرے گا۔ لینڈر وکرم اور روور پرگیان کے 23 اگست کو چاند پر اترنے کی توقع ہے۔ آج کی لینڈر ماڈیول کی پروپلشن ماڈیول سے علیحدگی نرم لینڈنگ سے قبل چاند کے ساتھ چلنے والی چالوں کی تکمیل کی نشاندہی کرتی ہے۔ چندریان 3 مشن کا بنیادی مقصد ایک محفوظ اور بآسان لینڈنگ، چاند کی سطح پر روور گھومنے اور اندرون خانہ سائنسی تجربات کا مظاہرہ کرنا ہے۔ چاند کی سطح پر ان تجربات کو انجام دینے کے لیے لینڈر اور روور سائنسی پے لوڈ سے لیس ہیں۔ بھارت کے بہت ہی اہم چاند مشن چندریان 3 نے کل کامیابی کے ساتھ چاند کے مدار میں اپنی 5ویں اور آخری چال کو مکمل کیا۔ واضح رہے، چندریان 3 14 جولائی کو لانچ کیا گیا۔ یہ ایک لینڈر ماڈیول، ایک پروپلشن ماڈیول اور ایک روور پر مشتمل ہے۔ خلائی جہاز 5 اگست کو چاند کی مدار میں کامیابی کے ساتھ داخل ہوا، جس کے بعد اسے قمری قطبوں پر کھڑا کرنے کے لیے مدار میں کمی کی تدبیریں کی گئیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج مغربی بنگال میں ایک روزہ دورے کے دوران راج بھون میں برہما کماریوں کی جانب سے منعقدہ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت میرا بنگال منشیات سے پاک بنگال مہم کا آغاز کیا۔ وہ گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز لمیٹڈ میں بھارتی بحریہ کے پروجیکٹ 17A کے چھٹے جہاز وندھیا گری کے افتتاح کے موقع پر بھی موجود رہیں گی۔ WHO کی روایتی طریقہ علاج سے متعلق پہلی عالمی سربراہ کانفرنس آج گاندھی نگر کے مہاتما مندر میں شروع ہوئی۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صحت کے مرکزی وزیر منسکھ مانڈویہ نے کہا کہ روایتی اور متعلقہ طریقہ علاج کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بین الاقوامی شراکت داری قائم کرنے، خیالات کے تبادلے اور بات چیت میں شامل ہونے کے لیے ایک منفرد موقع فراہم کرے گی۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس قدم سے روایتی طریقہ علاج کے امکانات کو بروئے کار لانے میں مدد فراہم ہوگی۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے تمام اضلاع، تحصیلوں، میونسپل حدود کے تحت آنے والے علاقوں، قصبہ جات، ریونیو ولیجز اور دوسرے انتظامی یونٹوں کے حدود کو 2021 کی مردم شماری مکمل ہونے تک منجمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پلاننگ، ڈیولپمنٹ اور مانیٹرنگ محکمے کی طرف سے اس سلسلے میں جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ مردم شماری کے رولز کی رول 8 اور کلاز 4 کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کی تمام حدود کو منجمد کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے، جو 1 جنوری 2024 سے لاگو ہو جائے گا اور مردم شماری کے ختم ہونے تک یہ لاگو رہے گا۔ سری نگر کے کالج آف ایجوکیشن میں آج محکمہ اعلیٰ تعلیم اور گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن کے باہمی اشتراک سے 2 روزہ قومی ورکشاپ بعنوان کیپیسٹی بلڈنگ فار مینیجرز ان ہائر ایجوکیشن منعقد کیا گیا۔ ورکشاپ کے پہلے دن آج کئی اہم شخصیات نے تقریر کرتے ہوئے موجودہ زمانے میں خواتین کے بڑھتے رول کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی نے اپنی تقریر میں کہا کہ خواتین کا بااختیار ہونا ہر لحاظ سے ضروری ہے، کیونکہ موجودہ وقت میں مرد اور خواتین ہر ایک کام میں شانہ بشانہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کشمیر یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے بھی خواتین کے رول پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سماج میں برابری کا ماحول پیدا کرنے سے ہی خوشحالی اور ترقی یقینی بن سکتی ہے۔ ویمن اسٹڈی سینٹر پنجاب کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر پیم راجپوت، ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر یاسمین اشائی، کنسلٹنٹ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر ڈاکٹر پروین پنڈت نے بھی ورکشاپ میں شرکت کرتے ہوئے خواتین کو بااختیار بنانے کے کئی پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन वजारत इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट नोबरा वैली में एक आउटरीच प्रोग्राम मुनअक्किद किया गया। प्रोग्राम में मोदी सरकार के 9 साल के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जैसी फलाही स्कीमों के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। प्रोग्राम के दौरान CBC के फील्ड ऑफिसर लह ने बताया कि मोदी सरकार ने मुल्क के आम आवाम को किस तरह से गरीबी और पसमानगी से निकालने के लिए फलाही स्कीमों को राइज किया और इन स्कीमों की बदौलत आज लोग गरीबी की सतह से ऊपर आ रहे हैं। डिप्टी चेयरमैन लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल स्विंग अंगचूक ने कहा कि CBC के इस तरह के प्रोग्राम मुनअक्किद करने से दूर दराज इलाकों के लोग उन स्कीमों से रूशनास होते हैं जो उनकी फलाह के लिए बनाई गई हैं। कदलबल पांपुर से ताल्लुक रखने वाले 19 साल के साहिल मकबूल खांडे को, जो कि मोटरसाइकिल पर करतबबाजियां अंजाम दे रहा था, का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डिप्टी SP ट्रैफिक पुलवामा शोपियां डॉक्टर मुदस्सिर त्रंबू ने अपने ऑफिस में बुलाया और करतबबाजी के खतरनाक नताइज से मज़कूरा लड़के को जानकारी दी। इतलात के मुताबिक पुलिस की तरफ से काउंसलिंग करने के बाद लड़के ने तहिया किया कि वो आइंदा इस तरह का कोई भी कदम उठाने से परहेज करेगा। दरियासना ट्रैफिक महकमे की तरफ से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस लड़के के खिलाफ चालान दर्ज किया गया है। SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर RP सिंह ने भी एक बार फिर से मोटरसाइकिल सवारों को करतबबाजी करने से बाज रहने की अपील करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ उनकी खुद की जान को खतरा लाहक होता है बल्कि राहगीरों और ट्रांसपोर्टरों के लिए भी खतरे का बायस बन जाता है। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की पुलिस और महकमे ट्रैफिक को हिदायत दी। जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस की 14वीं बटालियन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत आज गांदरबल में एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया। तिरंगा रैली को डिप्टी SP आर्मड पुलिस 14 बटालियन नवीद अहमद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में आर्मड पुलिस के एहलकारों के अलावा सैनिक स्कूल मानसबल के तलबा और मकामी लोगों ने भी शिरकत करते हुए हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर कौमी गीत पेश किए। रैली जो बटालियन हेडक्वार्टर से शुरू हुई मानसबल में इख्तिताम पजीर हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 10 रोजा सालाना बुद्धा अमरनाथ यात्रा से कबल सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। यह यात्रा कल से शुरू होगी। आज रिवायती अंदाज से भूमि पूजन किया गया और यात्रियों का पहला जत्था कल यात्रा के लिए जम्मू में भगवती नगर बुनियादी कैंप से रवाना होगा। बुद्धा अमरनाथ यात्रा इस महीने की 27 तारीख को जिले की मंडी हिल्स में खत्म होगी। 28 अगस्त को छड़ी मुबारक तकरीब मुनअक्किद होगी। कुलगाम जिले में आज महकमे सेहत, ड्रग कंट्रोलर महकमे के अफसरान और मुतल्लिका तहसीलदार पर मुश्तमिल एक मुश्तरका टीम ने जिला अस्पताल कुलगाम के बाहर कई अद्वियात की दुकानों और डायग्नोस्टिक सेंटरों का मुआयना करते हुए मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात का मयार चेक किया। टीम ने पाया कि कई डायग्नोस्टिक सेंटरों में कानून और मयारियात के मुताबिक काम नहीं हो रहा है और कई किस्म की खिलाफ वर्जियां अंजाम दी जा रही हैं। टीम ने 5 तशखीसी मराकज़ और 3 अद्वियात की दुकानों को मौके पर ही सर्वे मोहर करने का हुक्म सादिर किया। तहसीलदार कुलगाम ने इस मौके पर अद्वियात फरोख्त करने वाले तमाम दुकानदारों से ताकीद की कि वो न सिर्फ अद्वियात के मयार का ख्याल रखें बल्कि दुकानों पर फार्मासिस्ट का होना लाजमी करार दिया गया है, इसलिए इसके बगैर कोई भी दुकान चलाने की इजाज़त नहीं होगी। सुकास्ट कश्मीर के कृषि विज्ञान केंद्र अनंतनाग की जानिब से शांगस में आज एक रोज़ा जानकारी प्रोग्राम मुनअक्किद हुआ। प्रोग्राम के दौरान अखरोट की पैदावार में इजाफा करने से मुतल्लिक कई जानकारियां काश्तकारों को फराहम की गई। इसके अलावा इन काश्तकारों को अखरोट की ग्रेडिंग, पैकिंग और मार्केटिंग सहूलत के हवाले से भी जानकारी दी गई। प्रोग्राम में सुकास्ट कश्मीर के कई साइंसदान, महकमे एग्रीकल्चर के अफसरान, पंचायत मेंबरान और तरक्की पसंद किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर स्कॉस्ट के डायरेक्टर एक्सटेंशन दिल मोहम्मद मखदूमी ने किसानों से तलकीन की कि वो माहिरीन के मशवरों पर अमल पैरा रहें ताकि किसी भी मामले में उन्हें कोई भी दिक्कत दरपेश न आए। खूंजीपुरा टंगमर्ग से ताल्लुक रखने वाले कश्मीर के एक मारूफ मशरूम काश्तकार गौहर अली लोन को प्रोग्रेसिव अवार्ड 2023 के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें 10 सितंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश के सोलन में
इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जानिब से मशरूम मेला 2023 के दौरान इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस अवार्ड के लिए पूरे मुल्क में सिर्फ 5 किसान मुंतखब हुए हैं, जिनमें कश्मीर से गौहर अली का नाम भी शामिल है। इस अवार्ड के इंतखाब पर डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर की कामयाबी की निशानी है। अवार्ड में मिलन वोल यथ खतर बह सिलेक्ट गोस 10 सितंबरस मज मे रटन तत सोलनस मज मल मशरूमस खतर मल यह मान खतर एजाज की थ्रू जम्मू कश्मीर के खतर यूटी सन जम्मू कश्मीर अहद खतर यह एजाज इत पे बह कमालस वोतुस इत पे सोन यूथ ये बेरोजगारी ज्यादा पहान नौकरियन पत लड़कह कोर तो इत पे बह अगर तम तीन फील्डस मज एग्रीकल्चरस मज स्कोप यह मेन तरफ यूथस खतर मैसेज तम तीन डिपार्टमेंटस ब्रोह यूनिवर्सिटी ब्रोह तम पकन ब्रोह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी को जम्मू कश्मीर से मिटाने के लिए शरपसंद अनासिर ने कई कोशिशें की और कई बार इसकी साजिशें रची गईं, लेकिन इस तंजीम को मिटाने के लिए किया गया हर एक हरबा अवाम के ताउन से नाकाम हुआ। यही वजह है कि इस तंजीम से आज भी लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। इन बातों का इजहार उमर अब्दुल्ला ने पार्टी सदर दफ्तर पर एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में डोरू शाहबाद से आए हुए पार्टी कारकुनान और सीनियर लीडरान ने शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें लगाए हुए हैं, क्योंकि दफा 370 की समाअत चल रही है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ की तरफ से कही गई उस बात को दोहराया जो उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हवाले से कही थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से ही अमन अमान और मुल्क के आइन पर यकीन रखने की हामी रही है, इसीलिए मौजूदा वक्त में मुल्क के बेहतरीन वकला को जम्मू कश्मीर के लिए आइनी लड़ाई लड़ने के लिए मुकर्रर किया है। शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने की खातिर कल्चरल अकादमी की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में लिसानी हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुद्दा ने की, जबकि सुल्तानुल हक शहीदी और इंचार्ज ऑफिसर डिवीजनल ऑफिस कश्मीर फारूक अनवार मिर्जा भी ऐवान सदारत में शरीक थे। मुशायरे में मुख्तलिफ शोरा ने इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का को खराज अकीदत पेश किया गया। दीगर शोरा के अलावा रफीक राज, अली शैदा, शौकत अंसारी, ज़रीफ अहमद ज़रीफ, शमशाद करालवारी और गुलाम हसन गमगीन ने भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश किया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में मुख्तलिफ आसामियों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक बार फिर से ज़बरदस्त एहतजाज किया। इन एहतजाजी उम्मीदवारों ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने साल 2022 में एक कमेटी तश्कील दी थी और कहा था कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के इम्तहानात में जो भी दांधलियां हुई हैं उनकी तहकीकात की जाएगी और 1 माह के दौरान पूरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाएगी। लेकिन लगभग 1 साल गुजरने के बावजूद भी इस बारे में अभी तक कोई भी कार्रवाई अंजाम नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो जहनी परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं। फौज के 31 सबेरा के इश्तराक से शेर कश्मीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में रवा माह की 19 से 26 तारीख तक विमेन क्रिकेट लीग खेली जा रही है। लीग में 12 मुख्तलिफ काबिल और नामवर टीमें हिस्सा ले रही हैं। वाज़ेह रहे, फौज की चिनार कॉर्पस की तरफ से मुनअक़िद की जाने वाली इस लीग का मकसद ख़वातीन को खेल दुनिया में एक बेहतरीन मकाम फराहम करने के अलावा उन्हें बाइख्तियार बनाना है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पे हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।